Amresh Tiwari. As you know that I am editor publisher of Double Hikal. This is being published for Delhi NCR region, especially Ghaziabad. Now today we have very good topic as advised by Dr. A.K. Agarwal Sahab, the nasal problem in children. As you know that in the morning Delhi AQ is very high और इन दिनों बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनको प्रदूषण का बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये जो नेजल प्रॉब्लम्स है एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे साथ आज बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जैसे डॉक्टर अरविंद कर हैं, डॉक्टर पाशी साहब हैं, डॉक्टर गुलाटी साहब हैं। तो आए दिनों की राज में खुद थोड़ा ब्रीफ कर दूं कौन कौन से बारे हमारे एक्सपर्ट हैं। तो टुडे वी हैव द माय मेंटर Dr. A.K. Agarwal. He is a moderator of today event. He is a medical advisor, innovation, clinical research, Apollo Group of Hospitals, and former Dean Maulana Azad Medical College. And the eminent panelists like Dr. Achal Gulati, he is a president and vice chancellor Mahatma Gandhi Institute of Medical Science and Technology, Jaipur. And Dr. J.P. Pasi, Dean cum Principal and Professor ENT Department, World College of Medical Science and Research, Jhajjar, Haryana. And most important, Dr. Anup Mohta, Director Professor Lady Harding Medical College, New Delhi, and one of the well-known specialists, Dr. Arvind Gar, he is Senior Child Specialist, Apollo Hospital, Noida. And very known Dr. Sina Agrawal Bhargav, he is a Senior Child Specialist and founder Spurs. Basically, he runs Society for Promoting Awareness regarding school and health. Now I hand over to Dr. Agarwal to moderate today's webinar. Thank you, sir. Thank you, Tiwari sir. Once again, we are meeting on Sunday morning. And every time, whenever we meet on Sunday morning, we try to bring one important topic, which is perhaps useful not only for our medical society, but it is useful for the family, for the parents, for the children. And in the same way, today's topic is the nasal problems in pediatric age group. Needless to say that the magazine Double Helical, which is now completing more than 10 years, has been progressing, and type of topics, if Mr. Tiwari will like to send the links to you, it has covered practically each and every topic which is needed by every one of us in the society. So today's topic, I can see all the experts in front of me. And of course, individually, I will be talking about them. But at the same time, let me give you little background. Nasal problem in pediatric age group. I was just thinking that our dental colleagues, whenever they talk, they always say that the dental problems are not affecting only the entire 32 teeth, but perhaps they are also affecting the different important organs of the body. If our oral cavity is infected, that may become source of infection to each and every important system of the body. The same way, the nasal passage becomes the start of our respiratory system. It is the most important thing. That means we are not only talking about the nasal problem, but we are also talking about all the conditions which are linked with any pathological condition starting from the nose. So I would like to start my first question with my friend, my colleague, Dr. Achal Gulati, who is a very eminent ENT surgeon. He had been on the top rank
of National Medical Commission. He had been founder principal of Ambedkar Medical College and whatnot. But nowadays he is vice chancellor of Mahatma Gandhi Medical University, Jaipur. डॉक्टर गुलाटी, जी सर। आपका क्या सोच है? ये नेजल कैविटी जो आपके सामने रखी हुई है और जब बैड एयर या जो भी वजह से, तो ये क्या सोर्स बनती है, क्या क्या कॉमन कंडीशंस होती हैं? एंड ऑफ कोर्स आई विल गो बैक टू माय पीडियाट्रिशियन व्हेन दे विल टॉक अबाउट द सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट। आई थिंक सर वन थिंग फर्स्ट वी नीड टू गेट अक्रॉस, आज हमारा टॉपिक है बच्चों के लिए, लेकिन वी हैव टू गेट वन थिंग अक्रॉस, अ चाइल्ड इज नॉट अ स्मॉल एडल्ट। सो देर आर टू डिफरेंट फिजियोलॉजीज दैट वी लुक एट, सो वो दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आपके सवाल पे अगर मैं सीधा आता हूं, सो एंट्री पॉइंट कभी भी किसी हाईवे का होता है सर, एक एंट्री पॉइंट, उसके बाद आपकी स्पीड चलती है टिल दी एग्जिट्स कब। सो जब हम बात करें अपने नाक की, एंड वी टॉक अबाउट आवर नोज, दैट इज द एंट्री पॉइंट इनटू आवर एयरवे अपार्ट फ्रॉम व्हाट फ्रॉम द ओरल कैविटी। But traditionally, yes, the nose is the entry point into the airway. So that is, you have taken the entry onto the highway, and as we go inside onto the highway, there are multiple exit points. अब इसके exit points क्या हैं सर? हमारे sinuses के अंदर exit point चले गए, हमारे lacrimal में exit point चला गया, हमारा ऊपर brain में exit point चला जाता है cribriform plate के थ्रू, और जब हम नाक के पीछे जाते हैं तो हम nasopharynx में आकर के फिर हम नीचे oropharynx की तरफ जाते हैं। अब वहां से हमारा जो highway है, we have further continuation down into the airway. We go through the larynx and we pass by, through the and into the trachea. So concept that comes is one airway, one disease. हमारी एक एयरवे है और उसकी मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं और वो एक ही डिजीज से कवर करते हैं। सो नाउ दिस इज वन कंसेप्ट वी हैव टू ब्रिंग वेरी क्लियरली, इट इज वन एयरवे वन डिजीज। तो जो हमारी नाक में चाय वगैरह सब कुछ जो हमारी नाक में इशू स्टार्ट होगा वो हमारी चेस्ट में भी जाएगा, एयरवे पे भी जाएगा। सो दैट इज वाई आज के दिन जब हम पोल्यूशन की बात करें, तिवारी जी ने 450 का AQI बोला। सो एज वी गो डाउन, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर नेजल पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज, द एंटायर पैसेज ओवर देयर। अब इसके साथ साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं हमारे साथ, उसके अंदर हमारे पोल्यूटेंट्स जाते हैं, हमारे एलर्जन जाते हैं, और ये सब चीजें जाकर के उसको असर करती है, तो हमारी फिजियोलॉजी ऑल्टर हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद जो फिजियोलॉजी है वो पैथोलॉजी में भी चेंजेस आती हैं उसकी। सो अगर हम देखें तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है इस साइड पे शुरू होती है और पैथोलॉजी इस साइड पे शुरू होती है, इसके बीच का पेंडुलम जो है वो हमारा घूमता रहता है सारा टाइम पे। सो इन दिस सिचुएशन we could have sinusitis, we could have nasal inflammations, और नाक एक और ऐसी चीज है जो मैं करना चाहूंगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अवेलेबल एक्सप्लोरेटरी कैविटीज फॉर अ चाइल्ड। जो नाक है, अगर हम आप किसी मेट्रो में जाएं या बस में जाएं, अगर हमारी भारत की अगर एक पास टाइम देखें तो सबसे बड़ा पास टाइम है हमारे नाक में उंगली डालना, और वही बच्चा भी करता है। सो जब हम नाक में उंगली डालते हैं, ट्रॉमा के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ पे इंजरी सबसे ज्यादा होती है। सो हमारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होके एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स, रेस्पिरेटरी एयरवे, साइनसेस, ये सब जगह के ऊपर हमारी प्रॉब्लम्स जाती हैं। जो आपका सवाल है कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, ये कहानी यहीं से शुरू होती है और आगे चलती रहती है सर। ये Very well said, Dr. Gulati. One airway, one disease. We call it United Though Airways. though it is connected, the airway is connected with all the sinuses, lacrimal sac, Eustachian tube to the ear, then nasopharynx, and then to the entire body in different ways. We also call it United Airway. United Airways. Airways. Absolutely. Very good. I think this is a very good word. Dr. Arvind, let me start from you now. Dr. Arvind Garg is a very, very senior, eminent pediatrician from Noida, but he does not only belong to Noida, he belongs to entire country. He is very well associated with the Pediatrician Association, very active involvement in various fields. And Dr. Arvind Garg, ये जो आपने यूनाइटेड एयरवे की बात की, तो एज पीडियाट्रिशियन, बिकॉज इफ आई एम एंटी सर्जन, तो राइनाइटिस वगैरह तो हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद which are the common conditions as pediatrician you see, and you will like to associate it with the
ENT specialty? What is your common practice? Sir, 40% patients are common Okay. because they have cold, basic common cold, Hmm. and many of them will have otitis media. Many of them will have a sinusitis. They're bigger children. Many of them have bleeding. Fortunately, bleeding part is it comes from antenostril, which is easy to control. But obviously the posterior access is rare in children, and that's where we need your help. And many times in the anterior chamber bleed, anterior nostril bleeding, the bleeding is sometimes so severe we need a help for packing. Or if we have it, we can do it ourselves. It's also responsible for the many times because of allergic rhinitis. There are a lot of time they have a huge adenoids and huge polyps, and that's also where the ENT surgeons are needed. Thank you, Arvind. I think we will also talk in detail about the start of allergic rhinitis, which ultimately turns into the allergic, not only allergic rhinitis, then it goes into allergic bronchitis. And I strongly feel there is a very strong link between the start of allergic rhinitis to allergic conditions of entire respiratory. There's a statistics. Those who have allergic rhinitis, 80% will develop bronchial asthma. So that's after some time we'll discuss the importance of this concept. Now I'm coming back to my colleague Dr. J.C. Pasi sir. I must say thanks to Dr. J.C. Pasi that he agreed to join in spite of the fact that he is for last couple of days he is not very comfortable health-wise. But he's looking better. So welcome, Dr. Pasi. At the same time, Dr. Pasi had been a very eminent ENT surgeon. He was medical superintendent of Lok Nayak hospitals and the person who is very well known for his cochlear implantation surgical skill. And nowadays he is heading a very important private medical college in Jhajjar. There's a World Medical College for last 5 years. Welcome, Dr. Pasi. Dr. Pasi, let me remain confined to ENT. So now, as ENT surgeon, as ENT physician, when we were a student, the word used was epistaxis digitorum. अचल जी याद है? जी सर. एपिस्टैक्सिस डिजिटोरम, नाक से खून आना बहुत कॉमन कंडीशन है, चाहे विलेजेस में हो या शहरों में हो. हर जगह हर माँ को, हर पेरेंट्स को, हर फैमिली को ये शिकायत होती है कि उनके छोटे बच्चे के नाक से खून आ जाता है. तो ये जरूर हम जानना चाहेंगे और आपके थ्रू पूरी जो हमारा सुन रहे हैं वीडियो, ये बताना चाहेंगे कि क्या है और इसको कैसे रोका जाता है, क्यों होता है एपिस्टैक्सिस, नाक से खून आना. डॉक्टर पासी अनम्यूट कीजिए अपने आप को. डॉक्टर पासी अनम्यूट करो. प्लीज अनम्यूट सर. अनम्यूट करो अपने आप को. Unmute yourself, sir. Sir, please unmute yourself. हो नहीं पा रहा है शायद. Please unmute. Am I audible, Yes. sir? Yes, Yes. I have unmuted myself now. thank you. I will start with the problem of children
नाक से खून आना जो बच्चों के लिए हम्म। हम देखते हैं, विशेष करके गर्मियों के सीजन में, जब अप्रैल मई जून में ड्राई कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो बच्चों में नाक से खून आना, स्कूल में खासतौर पर स्कूल से फोन आते हैं जी कि बच्चे को खून आ रहा है, तो जनरली प्रॉब्लम तो उनको थोड़ा सा जो नाक में उंगली डालते हैं बच्चे, क्रस्ट फॉर्मेशन या इरिटेशन की वजह से, उसकी वजह से ही खून आता है। और वो खून इतना ज्यादा नहीं होता कि कोई अलार्मिंग अमाउंट का ब्लड लॉस हो रहा हो। तो उसमें हम लोग एपिस्टेक्सिस में, कोई भी एपिस्टेक्सिस हो, बेसिकली हम लोग उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को ही प्रेफर करते हैं। और अधिकतर वो ट्रीटमेंट जो है ना, इट वर्क्स। लाइक हम लोग जहां पर भी बच्चा है, हम उसको बताएं कि वो नाक को दबा के रखे अपनी, ऊपर से प्रेशर जो है ना, कांस्टेंट प्रेशर रहना चाहिए ऐसे। और इसके अलावा वो पोजीशन हम करा देते हैं उसको कि वो एक स्टैटिक स्थिर अवस्था में बच्चा रहे। और उसको गर्मियों में ठंडा पानी जो है उसकी नाक के ऊपर लगातार पोर किया जाए। तो ये चीजें जो है, जो फर्स्ट एड जिसको हम कह सकते हैं, वो होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का जो ब्लड आता है वो इतने से ही वो बच्चे कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे 16 साल, 15-16 साल की उम्र के से ज्यादा वाले बच्चे को अगर मैसिव ब्लीडिंग होती है, तो उसमें हम फिर नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, इन्वर्टेड पेपिलोमा, जो हमारी नोज के बिनाइन ब्लीडिंग कंडीशंस हैं, वो हमको रूल आउट करनी होती हैं। और वो उसमें अक्सर सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। इसके अलावा हमारी जो एपिस्टेक्सिस एल्डरली ग्रुप में जो होती है, एल्डरली ग्रुप में जो हाइपरटेंसिव्स हैं, हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं, उनको नाक से खून आ सकता है। और ये खून भी जो है काफी अच्छी मात्रा में निकलता है, काफी फ्राइटनिंग होता है। और इसमें अक्सर जो ब्लीड है वो नाक के पीछे वाले हिस्से से होती है, तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है कि हम लोग नाक के पीछे, जो हम नेजोफेरिंक्स जिसको हम बोलते हैं, उस एरिया में भी और आगे वाली साइड से भी नाक की हमको पैकिंग करनी पड़ती है। हमें मैकेनिकल प्रेशर देना पड़ता है उसमें, अगर हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है तो ब्लड प्रेशर जब तो हमारे फिजिशियन इमीडिएटली लोअर कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो उस वक्त उस एपिसोड के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है, वो कंट्रोल करने के लिए हमको मैकेनिकल प्रेशर देना पड़ता है 48 to 72 आवर्स। और उससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है। अब सवाल ये रहा कि ये ब्लीडिंग का जो कारण है वो क्या है। तो उसमें हमने जैसे देखा कि जो एल्डरली ग्रुप है उसमें अधिकतर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। और बच्चों में जो है वो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर हो, डॉक्टर अरविंद गर्ग विल बेटर स्पीक ऑन दिस, कि उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से ब्लीडिंग होती है। और एक चीज हमने और भी हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग नाक से हो सकती है। वो प्री एक्लेम्पसिया वाले केसेस होते हैं, कारण उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर ही होता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होता है। तो वो कंडीशंस हैं जिसमें जो माइल्ड हैं, जो हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती हैं। इसमें हमें नेजल ड्रॉप्स भी देने होते हैं। आजकल स्प्रे देते हैं हम लोग ड्रॉप्स की बजाय, वी प्रेफर स्प्रे। उसकी जो नाक के अंदर पेनिट्रेशन है उसकी चारों तरफ ज्यादा अच्छी होती है। तो हम लोग नेजल स्प्रे और नेजल सेलाइन, और कई बार हमें डीकंजेस्टेंट भी देना पड़ेगा अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं है। यस सर। थैंक यू डॉक्टर पारसी। जी। ये जो नाक से खून आने की जो कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी है उसके बारे में आपने कुछ उसकी खास वजह बताई और बताया कि इमीडिएटली क्या करना चाहिए। और कुछ ऐसी कंडीशन जो कि थोड़ा सा बड़े बच्चों में होती है, एंजियोफाइब्रोमा की बात की, वो भी एक एक वजह होती है। जबकि
कभी कभी बच्चों में बहुत ज्यादा खून आता है। मैं डॉक्टर सचिन के पास बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर सचिन भार्गव सीनियर पीडियाट्रिशियंस हैं फोर्टिस के साथ, और बहुत अच्छा लगता है कि आपका स्कूल हेल्थ की जो एक नीड है उसके लिए आप बहुत कीनली काम करते हैं, डॉक्टर सचिन भार्गव। ये जो डॉक्टर पाशु ने बताया उसमें क्या सिस्टमिक कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को नाक से खून आना बार बार होता है? लोकल कॉज तो उन्होंने बता दिया, ट्रॉमा हो गया, उसके अलावा सिस्टमिक कॉजेज क्या होते हैं और ब्लड से रिलेटेड क्या होते हैं? Sir, in systemic causes, we can mainly divide in two forms. One is of the infective forms, which causes thrombocytopenia. Like one very common is dengue fever, and another any infection if there is a very low which affects the hemopoietic tissue, and if the platelet count is very much reduced, then there are chances of epistaxis in children. And another is the if there is any clotting factor deficiency, one common beings like hemophilia and other factors. Though the incidence is not very high, but if the child parents is complaining of the repeated epistaxis, then as a pediatrician, I think we keep a high suspicion and we go for investigations for these types of illnesses which we can detect. And still, the most common cause remains the manipulation, digital manipulation, and the dry air, which usually bleeding is mount is very low and very easily controllable. And if we counsel the child and मैं बाद में inform कहूँगा। adequately, then most of the time the incidence reduces significantly of epistaxis in these children. Thank you. Thank you, Dr. Sachin. Now I will proceed to Dr. Anup Mohta. डॉक्टर अनूप मोहता हमारे कोलीग हैं, हमारे फ्रेंड हैं, एंड ही इज a very eminent pediatric surgeon. He is responsible for setting up the very famous Chacha Nehru Pediatric Hospital in Gita Colony in Delhi. Of course, he had been keenly involved in the NABH system of hospital accreditation. He is the man of quality care. And of course, nowadays, he is the pediatric surgeon of Director Professor Pediatric Surgery in Lady Harding and Kalavati Sharan Hospital. Welcome, Dr. Mohta. Thank you, sir. Thank you very much. अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें एपिस्टेक्सिस की हमने बात की। Yes, sir. तो एज pediatric surgeon, what had been your experience, that had there been any surgical intervention on the part of pediatric surgeon when the bleeding was so massive? सर असल में जब भी नेजल ब्लीडिंग के केसेस हमारे पास आते हैं, वी हैव बीन फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज्ड टू हैव कंसल्टेशन विद द ईएनटी सर्जन्स, Good. एंड दैट इज व्हाट इज द प्रेफर्ड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एट द मोमेंट। लेकिन ये है कि अगर नहीं होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है, तो अपार्ट फ्रॉम द काउंसलिंग असल में 2-3 सिचुएशन में आती है सर पीडियाट्रिक सर्जरी में जो ब्लीडिंग वाली इशू होती है। एक तो जैसे अभी तक डिस्कस हुआ एपिस्टेक्सिस, डिजिटोरम जो ट्रॉमा की वजह से, क्रस्ट की वजह से एंड ऑल दैट। एक और सिचुएशन जो पीडियाट्रिक सर्जन्स फेस करते हैं जब मल्टीपल ट्रॉमा होता है, हेड That's इंजरी हुई, हेड इंजरी के बाद नेजल ब्लीडिंग होती है कई बार जब बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, एंड विच इज लेटर ऑन फॉलोड अप बाय CSF राइनोरिया। तो इनिशियल स्टेज में ब्लीडिंग होती है विच अगेन हैज टू बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली बाय प्रेशर टेक्निक्स एज डिस्कस्ड ऑलरेडी बाय एक्सपर्ट सीनियर्स, एंड दैट इज द सिचुएशन। और उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग ENT सर्जन्स की गाइडेंस लेते हैं। Second possibility is a foreign body in the nose,
विच इज मिस समटाइम्स। बच्चे नाक में दे आर वेरी इंक्विजिटिव और नाक में फॉरेन बॉडीज डाल लेते हैं, वो कई दिन तक पड़ी रहती हैं, तो या तो ट्रॉमा की वजह से या इन्फेक्टिव आउटकम्स की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यू मे हैव सम नेजल ब्लीडिंग। तो ऑब्वियसली वी हैव टू एग्जामिन दैट एंड टेक आउट द फॉरेन बॉडी। ऑब्वियसली कॉज हटाएंगे तो फॉरेन बॉडी निकल जाएगी, तो ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, बट अदरवाइज अगेन कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड। तीसरा सर, नॉट अप्रोक्सीमेटली एपिस्टैक्सिस, पीडियाट्रिक सर्जन्स का रोल बहुत कम होता है ईएनटी नाक के बारे में, लेकिन एज ए कंजेंटल मैलफॉर्मेशन अगर That क्लेफ्ट लिप के साथ अगर हम देखें तो नोज इज क्लोजली इन्वॉल्व विद क्लेफ्ट लिप डिफॉर्मिटी एंड क्लेफ्ट पैलेट डिफॉर्मिटी, तो उसके साथ हमें इसको भी मैनेज करना होता है। तो इनिशियल स्टेज में हम चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन बाद में अगेन जब कॉस्मेटिक चीज़ें करनी होती हैं तो हम अपने ईएनटी फ्रेंड्स या प्लास्टिक सर्जन फ्रेंड्स के साथ मिलके राइनोप्लास्टी वगैरह जो होती है उसको हम टैकल करते हैं। सो पीडियाट्रिक सर्जन्स का ऐसा लिमिटेड रोल है, लेकिन जहाँ भी है ईएनटी सर्जन नहीं है और अवेलेबल नहीं है, तो देन ऑब्वियसली वी आर द treating part in the treating team, and we do whatever is possible within our domains. Thank you. Is there any डॉक्टर मोहता, मैं आपको बता दूं Yes, sir. कि आपने कहा ना, हम ईएनटी सर्जन हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, कोई बात होगी, तो प्लास्टिक जो हमारे पीडियाट्रिक सर्जन हैं वो हमारे साथ हैं और वो उसको संभाल लेंगे। वो जो Yes, फैक्टर होता है ना, मैं हूं ना, yes, sir. वो हम आप में देखते हैं। Thank you, sir. हाँ। Thank you. मैं ठीक कह रहा हूँ अचल? बिल्कुल सर, परफेक्ट। मैं- और फॉरेन बॉडी जब नाक से ब्रोंकस में जाती है तो फिर पीडियाट्रिक सर्जन की बहुत याद आती है ना सर। ऑप्टिकल फोर्सेप्स तो उन्हीं के पास है ना सारे। तो डॉक्टर गुलाटी, जरा फॉरेन बॉडीज के बारे में जरा बताइए, योर एक्सपीरियंस। कोई ऐसी फॉरेन बॉडी जिसको कि हम नॉर्मली, आप बताएं नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या क्या है, और आपने क्या देखे अभी? जी सर। सर ऐसा है कि समथिंग अनयूजुअल। देखो, नोज इज द मोस्ट एक्सेसिबल कैविटी अपार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी फॉर एनी चाइल्ड। और एक बच्चे की एक, अगर हम इंट्रिंसिक नेचर देखें, वो एक एक्सप्लोरेटरी नेचर होती है। सो ही टेंड्स टू पुट एवरीथिंग इन द नोज राइट फ्रॉम द फिंगर ऑनवर्ड्स। सो मोस्ट कॉमन अगर हम देखें फॉरेन बॉडी, तो वो रबर होता है, पेंसिल के पीछे रबर लगा होता है, रबर डाला बीच में, कंकर डाला बीच में, या एक बीज डाल दिया, राजमा का बीज डाल दिया, चने का बीज डाल दिया, बिकॉज दीज थिंग्स आर रूटीनली यूज्ड इन द हाउस एंड दे आर आल्सो अवेलेबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। सो ये सब कॉमन चीजें हैं जो कि होती हैं। अब इसके साथ साथ अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन वगैरह ऐसी हो जाती है और हम बच्चे की केयर ना करें, तो एक बायोलॉजिकल फॉरेन बॉडीज भी होती हैं, मैगट्स, जो हमारे हाउस फ्लाई होती हैं, उसके मैगट्स, उसके जो अंडों से जो बाहर निकलते हैं, तो वो कीड़े सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो हमारे नाक के अंदर हो जाते हैं। सो एक ये फॉरेन बॉडीज भी आ जाती है इंटरेस्टिंग। एक और लाइव फॉरेन बॉडी होती है लीच, जो चिपक जाती है, खून खून वाली। तो पहाड़ों में वो अक्सर देखी जाती है, क्योंकि हम जब पहाड़ में नेचुरल स्प्रिंग का पानी पीते हैं यूं करके, तो वो उस पानी के साथ हमारे नाक के अंदर चली जाती है। सो दैट गोज एंड अटैचेस इटसेल्फ टू आवर अपर पार्ट ऑफ द नोज एंड दैट स्टार्ट्स जस्ट सकिंग द ब्लड ओवर देयर। सो दीज आर अ फ्यू इंटरेस्टिंग फॉरेन बॉडीज वी हैव सीन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर, बहुत सारी फॉरेन बॉडीज और होती हैं। बच्चा माँ की गोद में है, माँ ने नथ डाली हुई है, बच्चे ने नथ हाथ में आ गई और वो नाक में डाल ली अपने। सो एनी सॉर्ट ऑफ फॉरेन बॉडीज कैन बी गॉन इनटू द नोज। नाउ दिस इज वन थिंग विद द चाइल्ड पुट्स इन। लेकिन एक और होता है उसका सिबलिंग, जो है उसका भाई बहन है, छोटा भाई बहन, वो भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे या खेलने के तौर के ऊपर नाक में उसकी फॉरेन बॉडी डाल देता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। सो कभी भी जब बच्चे का एक साइड से नाक बह रहा हो, पस आ रही हो, तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि एक साइड से आ रहा है तो इसके अंदर कहीं कोई फॉरेन बॉडी पुरानी अंदर फंसी तो नहीं हुई है, तो ये हमको देखना है। सो अब जब निकालना है फॉरेन बॉडी, अगेन इसकी प्रॉब्लम आती है कि अगर हम सीधा निकालने की कोशिश करें तो बच्चा रोता बहुत है, हिलता बहुत है। तो उस दौरान जब वो फॉरेन बॉडी हमारे नाक में होती है, तो हो सकता है वो नाक के पिछले हिस्से से जाकर हमारे सांस के रास्ते में या हमारे खाने के रास्ते में चली जाए, तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सो इसके लिए हमारे को तरीका आना चाहिए, बच्चे को कैसे पकड़ना है निकालने के लिए, बच्चे को कौन से इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं हम। और कई बार ऐसा होता है कि हमको थोड़ा सा जनरल एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है निकालने के लिए, ताकि बच्चा कंफर्ट रहे। और फॉरेन बॉडी निकालने के बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है उसकी दूसरी फॉरेन बॉडी भी हो। अगर उसने एक बीज डाला है तो हो सकता है दो बीज भी डाले हों। सो वी ऑलवेज नीड टू अगेन एक रीचेक करना चाहिए हमको कि क्या क्या है।
लेकिन फॉरेन बॉडी को अगर हमारे को दिख रही है फॉरेन बॉडी तो एक बात है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे को एक फॉरेन बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है जिसके आसपास सारा म्यूकस पस वगैरह होती है, काफी देर से अगर वो होती है तो हमको कुछ चीजें और रूल आउट करनी पड़ती है। हो सकता है हम एक ट्यूबर देख रहे हों, जैसे एंजियोफाइब्रोमा की बात हो या पॉलिप हो नीचे पीछे उसके, या अगर हम कोई उसमें बच्चे में ट्यूबर होता है तो वो हमको रूल आउट करना पड़ेगा डेफिनेटली बिफोर गोइंग अहेड। तो इसमें हमको हो सकता है मे बी कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े, एक्सरे करनी पड़े या सीटी करना पड़े, या जो भी उसके मुताबिक हम देख सकते हैं। उसके बाद जब हमारा नाक की ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसको हमको और कुछ चीजें रूल आउट भी करनी है। डिविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी भी टेढ़ी हो सकती है। तो ये चीजें जब हम नाक की ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, ये तो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो गई। लेकिन साइड बाय साइड सर एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि नाक में फॉरेन बॉडी गई अंदर, वो अंदर रह गई, इन्फेक्शन हो गई, या हमारे नाक में जैसे आपने बोला कि उंगली गई, चोट लग गई, एपिस्टैक्सिस हुआ लेकिन इन्फेक्शन हो गई। तो जो मैंने शुरू में कहा था, नाक एक एंट्री पॉइंट है हाईवे का। उसके जहां जहां एग्जिट है, चाहे हम कान की बात करें, चाहे हम ब्रेन की बात करें, चाहे हम आंख की बात करें, वो जो इन्फेक्शन है, क्योंकि हमारा नाक एक ऐसा जिसका आगे का हिस्सा है उसको हम डेंजरस एरिया ऑफ द नोज कहेंगे। सो वहां से जो इन्फेक्शन है हमारे ब्रेन में भी जा सकती है, वहां से इन्फेक्शन हमारे कान में भी जा सकती है, वहां से इन्फेक्शन हमारे साइनसेस में भी जा सकती है। सो नाक की इन्फेक्शन को लेना एक हल्के तरीके से ठीक नहीं होता है कई बारी, और हमको वो आगे करना होता है। क्योंकि जो बाकी सब चीजें हो गई, अब इसके साथ अनूप मोटा जी ने कहा क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट हो सकते हैं, दैट ऑल्सो वी नीड टू लुक एट इट। क्योंकि अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉरेन बॉडी बहुत देर से पड़ी हुई है, नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है, नहीं डिटेक्ट हुई, और वो डिटेक्ट जब नहीं होती है तो उसके आसपास कैल्शियम जम जाता है, तो वो फिर एक पत्थर का रूप ले लेती है, उसको फिर हम राइनोलिथ कह देते हैं। तो राइनोलिथ बिल्कुल एम्बेड हो जाता है, तो उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, वो जैसे बिल्कुल एक हड्डी की तरह, पत्थर की तरह अंदर नाक के अंदर होता है। सो वो एक राइनोलिथ बन जाता है अंदर। सो बहुत देर अगर रहता ही है, नाक बंद रहता है, तो उसके मुंह का आकार भी चेंज होने लगता है। तो ये सारी चीजें हमको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए। वी मस्ट कीप अ ओपन माइंड, क्योंकि वॉट एवर द माइंड नोज ओनली दैट ओनली द आई विल सी, अदरवाइज वी कीप ऑन एंडिंग अप इन अ प्रॉब्लम एट टाइम्स सर। थैंक यू सर। फॉरेन बॉडी के बारे में आपने सब ये बातें सर हम बताई। अरविंद। हमने 2025 में एक हाँ, प्रोग्राम स्टार्ट इंट्रोड्यूस किया था इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक में। इट इज कॉल्ड पोएम, पीडियाट्रिक ऑफिस इमरजेंसी मेडिसिन। So इसके अंदर we had this foreign body nostril also and epistaxis both. So we are the one who initiated the program. So we remember very clearly the foreign body in the nostril के लिए हमने बोला था कि we always tell बच्चों को मदर की गोद में बैठाओ, parental kiss करते हैं। The nostril is on the other side. Mother is supposed to blow on the other nostril. Usually it comes out from the side. Because that's more simple. उसमें ज़्यादा झंझट, but mother, baby allows mother to do this. Also, we have people have use a ambu bag on the face. Put the ambu bag, it comes out. We also use a Foley's catheter, smallest Foley's catheter. Go beyond it, inflate it, and pull it out. And plus, आपके instruments होते हैं जो which has a टेढ़े होते हैं ना, जिसको आप स्टेशन कैथेटर, स्टेकन कहते हैं। वो निकाल लेते हैं। सो देयर इज आल्सो वी आल्सो इफ इट विजिबल, आपको लग रहा है कि वो हाथ डालो फिसल जाएगा, तो व्हाट वी डिवाइस, लाइक हम लोग ईयरबड रहते हैं, ईयरबड पे यदि फेविकॉल जैसा टिप लगा के उसके ऊपर टच कर दें, वो अपने आप बड़े आराम से आ जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। दिस इज अ यूनिक वे वी हैव डिवाइसेस एंड प्रेजेंटेड इन द एकेडमी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने फेविकॉल लगा दिया। तो ये तो फेविकॉल जैसी प्रोडक्ट के लिए। फेविक्विक, आई मीन फेविक्विक, अच्छा, वो जो आपका ग्लू होता जो है। वेरी गुड। आई थिंक आई मस्ट कंग्रेचुलेट कि आपकी जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन के डिफरेंट विंग्स हैं, they are trying to look into various innovative things, and that is what is required. And these innovative things not only becomes good for India, but it becomes the global practice also, if found acceptable. Dr. Pasi, आप हाउ कॉमन आर यू यूजिंग सर? ये एक बॉट्रो क्लॉट नहीं आता है, क्लॉट सोल्यूशन, फिर से बताएं। देयर इज सॉल्यूशन व्हिच इज अ बॉट्रो क्लॉट, Okay.
and it is which helps in coagulation. So there is something called, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मेरोसील करके, there is a, हाँ हाँ, वो तो उस टाइप की बहुत सारी जो ब्लीडिंग को इमीडिएटली रोकने के हाँ, तो लिए। वो एंटी, जब नहीं, यदि सपोज many time pressure doesn't help, so if lot of people use silver nitrate stick to cauterize it. If it's still not working, then Botrol को आप हाइड्रोसील जो मेरोसील डालते हैं, इनके डिफरेंट साइज आते हैं एज के हिसाब से, वर्टिकली जाते हैं, एंड इट स्टेज देयर, वो अपने आप फूल का बंद हो जाता है. दिस इज व्हाट वी हैव बीन taught to us by our AT colleagues. That's right. But one thing we cannot forget, I hope my ENT colleague will agree, in acute phase of epistaxis, यदि मदर या फैमिली या फादर बच्चे के नाक को, सिर को आगे करके और जोर से नाक को दबाए रखें, और वो प्रेशर अचल, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोग थ्योरेटिकली तो 3 मिनट के लिए कहते थे। 5 to 10 minutes, sir. देखिए मेरे पीडियाट्रिशियन ने उसको और बढ़ा दिया। सर वो ब्लीडिंग टाइम इतना होता है हमारा, तो वी हैव टू जस्ट गिव इट स्लाइटली मोर देन द ब्लीडिंग टाइम। और उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि जैसे नॉर्मल हमारी टेंडेंसी होती है घरों की, बच्चे को लिटा दो, लिटाना नहीं है बच्चे को बिठा करके आगे झुकाना है, ताकि खून उसके अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है वो सांस के रास्ते में ना जाए, और नाक को दबा करके बाई वॉच 5 मिनट रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ब्लीडिंग स्टॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ में एक प्रिकॉशन, मैं हमेशा ये कहता हूँ पैर बच्चों को, उनके पास वॉच होती नहीं है, आई टेल देम यू काउंट स्लोली अप टू 500, then you take it out, then you. मैं सिर्फ मदर्स को ये कहता हूँ, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब हमको 3 मिनट तक वेट करना होता है, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल होता है, बड़े हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। 60 सेकेंड के बाद ही आदमी सोचता है 3 मिनट हो गए। चेक करते बाबा, इसलिए चेक करते बहुत रहते हैं. जरूरी है कि चेक करें। सर दिस इज द ये थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल रिलेटिविटी, प्रॉब्लम है। दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कहते हैं ना कि टाइम कितना फास्ट या स्लो होता है, ये डिपेंड करता है आप बाथरूम के अंदर हो के बाथरूम के बाहर हो, और आपको अंदर जाना है। डॉक्टर पासी, यस सर। ये जो यूस्ट्रेकियन ट्यूब की एंट्री है बैक ऑफ द नोज पे, नेजोफेरिंग्स में, एंड इट डायरेक्टली कनेक्ट टू द मिडिल ईयर, तो ये ट्यूब, इससे ओटाइटिस मीडिया, ये क्वेश्चन मैं अपने पीडियाट्रिक कोलीग के पास भी आऊंगा। सो व्हाट हैड बीन यू एज ENT सर्जन, व्हिच इज यूस्ट्रेकियन ट्यूब इज ऑफन ब्लेम्ड कि इसी की वजह से ओटाइटिस मीडिया शुरू होता है, और यस होता भी है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे यूस्ट्रेकियन ट्यूब का, और उससे किस तरह एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और ये सब होता है छोटे बच्चों में? यस सर। सर इससे पहले मैं थोड़ा सा वो जो आई विल गो बैक टू द फॉरेन बॉडीज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. We have not elaborated on the life-threatening conditions which can be caused by a foreign body in the respiratory tract. जी जी बताइए। एक लैरिंक्स के अंदर लीच फंसी हुई है, और उसकी बहुत वायरल हुई थी वीडियो हमारे ENT सर्कल में, कि वो बच्चा जो ही वाज एन एडल्ट, तो वो फॉर्चुनेटली this patient did not die. There was a severe laryngospasm due to that foreign body trapped in the laryngeal inlet. So these kind of situations can happen in the larynx. Similarly, trachea and then bronchi. तो अभी जैसे डॉक्टर अनूप मोहता से बात हो रही थी कि इनका क्या रोल है एज पीडियाट्रिक सर्जन, तो जब फॉरेन बॉडी जो है चली जाती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वैसे तो हम लोग एज ENT सर्जन भी उसको निकालते हैं, बट पीडियाट्रिक सर्जन्स का भी उसमें रोल है, और दीज कंडीशंस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और हमें उनको एज इमरजेंसी ट्रीट करना चाहिए. अब मैं यूस्टेशन ट्यूब की जो आपने बात की सर, तो उसमें यूस्टेशन ट्यूब को हम जानते हैं कि उसमें कार्टिलेजिनस पार्ट भी है और बोनी पार्ट भी है, और ये ट्यूब जो है नेजोफेरिंक्स में खुलती है एक तरफ, और दूसरी तरफ कान के बीच वाले हिस्से में मिडिल ईयर में खुलती है. और इसका जो रोल है, जो भगवान ने रोल बनाया है, वो ये है कि कान के बीच वाले हिस्से में, तिवारी जी, हमको नॉर्मल सुनने के लिए हमारे पास एक
इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिडिल ईयर में भी होना चाहिए फॉर प्रॉपर कंडक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। अगर वो प्रेशर कम या ज्यादा होता है तो हमारा कान बंद हो जाता है या हमें कम सुनता है। तो ये प्रेशर को इक्वलाइज करती है खुलने और बंद होने से। और एवरी टाइम वी स्वलो, जैसे कि हम थूक भी सटकते रहते हैं, दिन रात सोते समय भी सटकते हैं, तो यूस्टेशियन ट्यूब उससे खुलती और बंद होती रहती है उस एक्ट से। और ये एयर प्रेशर जो है वो इक्वलाइज होता रहता है एटमॉस्फेयर से। तो अब जब ये ट्यूब इडिमेटस हो जाती है, जब सूज जाती है, नैरो हो जाती है इसका इसका जो पैसेज है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। जैसे कि बच्चों को बहुत जुकाम रहता है, जिन लोगों को, जिनको साइनोसाइटिस बहुत सीवियर होता है बच्चों को, उनको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जिसको हम कहते हैं, कान के बीच वाले हिस्से में बहुत सीवियर पेन होना, पस का कलेक्ट होना और कान का पर्दा फट जाना, ये सभी चीजें होती हैं एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में, जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। और बच्चों की यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो ज्यादा अनवेल रहती है इस कारण से कि वहां पर एडिनॉइड टिश्यू बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है। एडिनॉइड टिश्यू जो है वो भी टॉन्सिल की तरह ही एक लिम्फोइड टिश्यू की कलेक्शन है, जो दोनों यूस्टेशियन ट्यूब के बीच में ऊपर वाले हिस्से में यूस्टेशियन ट्यूब को डायरेक्टली अफेक्ट करता है जब वो खुद इन्फेक्टेड हो या उसका साइज इतना बड़ा हुआ हो कि वो यूस्टेशियन ट्यूब को मैकेनिकली भी प्रेस करके उसका ल्यूमेन को कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है। तो बच्चों में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है वो यूस्टेशियन ट्यूब के अनवेल होने से सबसे ज्यादा कॉमन कंडीशन है ये। और ये जो बच्चों को कान में जो सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया है वो उसका मुख्य कारण है। और ये जो होता है वो बार बार जुकाम होना, बच्चे को एडिनॉइड में इन्फेक्शन होना या साइनस में इन्फेक्शन होना या एलर्जी भी होना, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं उसको प्री डिस्पोज करते हैं कि वो कान के अंदर उसको इन्फेक्शन जा सकती है। और ये ओटाइटिस मीडिया जो है फिर ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाता है और सालों साल चलता है अगर इसका एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। इसके अलावा यूस्टेशियन ट्यूब सर, हम एज ए क्लिनिशियन जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनका नेजोफेरिंक्स में कैंसर भी होता है, जो कैंसर होता है नेजोफेरिंक्स में एडल्ट्स को जनरली, उसमें एक साइड में पेशेंट बोलता है कि मेरा कान बंद है या कम सुनता है। तो आजकल तो हम एंडोस्कोप हमारे पास अवेलेबल हैं, हम झट से जो है यूस्टेशियन ट्यूब एरिया को, नेजोफेरिंजियल एरिया को एग्जामिन करके और वो हम बता सकते हैं कि एक तरफ कुछ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। क्योंकि एडिनॉइड्स जो है वो 11-12 साल की एज तक रहते हैं, उसके बाद अपने आप ही रिग्रेस हो जाते हैं। और अगर एल्डरली एज ग्रुप में किसी को इस तरह की कंप्लेंट होती है कि कान बंद हुआ एक साइड का खास तौर पर, तो एक इंडिकेशन होती है कि यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हुई हुई है किसी कारण से, उसको देख लिया जाए। इसके अलावा यूस्टेशियन ट्यूब जो है उसका जो ल्यूमेन कम है या वो इडिमेटस है, उसका असर जो है, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर है हमारे जैसे एच.एल. गुलाटी, डॉक्टर अरुण अग्रवाल की तरह, जो आधे से ज्यादा समय जो है वो हवा में रहते हैं, तो इन लोगों को दे आर मोर वल्नरेबल। क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब में जब हम फ्लाई करते हैं या जब हम नीचे उतर रहे होते हैं, तो दोनों सिचुएशन में एयर प्रेशर जो है सडनली चेंज होता है, बहुत कम और बहुत ज्यादा होता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे कान बंद हो जाते हैं उस समय। तो वो यूस्टेशियन ट्यूब ही है जो उसके लिए जिम्मेदार है कि वो अगर पूरी तरह से वो खुला हुआ ल्यूमन उसका नहीं है तो कान बंद हो सकते हैं। और बच्चे तो कई बार बहुत तेज चिल्लाते हुए रोते हुए पाए जाते हैं एरोप्लेन के अंदर। और पहले तो हमें एयर होस्टेस जो है वो चिंगम देती थी खाने के लिए अंदर बैठते ही, अब वो रिवाज खत्म हो गया है। बेसिक आइडिया, पानी देता है सर। हाँ, बेसिक आइडिया यही था कि हम लोग उसको चबाने से यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो खुलती बंद होती रहती है बहुत फ्रीक्वेंटली, और उससे जो सडन चेंज है प्रेशर का वो नहीं आएगा और कान बंद होना या कान में दर्द होना नहीं होगा। यस सर। इसमें एक एक चीज मैं ऐड कर लूं सर, इसमें एक चीज, अगर आप म्यूटेड हैं सर। गुलाटी साहब, प्लीज गो अहेड। हाँ सर, इसमें जो डॉक्टर पासी ने बोला, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो बच्चा फ्लाइट में रोता है उस समय अक्सर होता है कि क्या करे,
सो उसमें एक छोटी सी चीज, बट वी हैव टू जस्ट सजेस्ट टू द मदर कि स्टार्ट फीडिंग द बेबी। ब्रेस्ट फीड अगर लेता है बच्चा तो ब्रेस्ट फीड शुरू कर लो, और गिव हिम सम वाटर टू सिप, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज ये है कि अक्सर लोग मांगते हैं कि मेरे को कॉटन प्लग दे दो, मैं कान में लगाऊंगा। सो दैट इज अ कंसेप्ट विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कान में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम उसकी कान के बाहर से नहीं है, वो कान के यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू है, जैसे डॉक्टर पासी ने बोला। जब वो प्रेशर इक्वलाइज नहीं होता है तो वो जरूरी हो जाता है। तो वी नीड टू बी अवेयर कि, क्योंकि ये फ्लाइट में सबसे कॉमन चीज होती है, अब बच्चा रोता है और आप देख नहीं सकते हो, तो आपको एडवाइस तो करना पड़ेगा ना किसी माँ को कि क्या करना है। सो जस्ट अ स्मॉल ऐड टू व्हाट डॉक्टर पासी सेड। So in fact, can I see something? Yes, yes, please, Arvind. So generally, we as a policy, when the parents ask, "हम fly करे जा रहे हैं," तो I tell them, while accent and descent, mother should be breastfeeding, or if the mother is not breastfeeding, then she should be giving feeding by bottle, or bottles हम वैसे discuss करते हैं. I tell them pacifier, this is a plain pacifier. But we always tell mothers, यदि आपके बच्चे बड़े बच्चों के लिए रनिंग नोज ब्लॉक नोज के साथ आप फ्लाई करने जा रहे हैं, तो you must put nasal drop just before your boarding, so that the nose is open, the Houston tube is open, and you're drinking some fluid while take off landing. सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब ओटाइटिस मीडिया होता है ना इन चिल्ड्रन में, वी आर सपोज टू गिव द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इज ऑलवेज एन ऑगमेंटेड, which should be given at a dose of it's a very high dose, 90 milligram per kg per day for at least 7-10 days. We should never give it less than 7 days. So this is what I meant, this dose should be very correct and for a very good period. That's what डॉक्टर अरविंद, आपका ये कहना है कि फॉर ऑल ईयर कंडीशंस जो इन्फेक्टिव होती हैं उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत यदि है, तो एंटीबायोटिक हैज टू बी गिवन एन अप्रोप्रिएट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। correct, sir. आई थिंक हम ईएनटी सर्जन भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएनटी एंड पीडियाट्रिशियन। हालांकि सर कभी वन शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दी unnecessary use of antibiotics at most of the time should be discouraged, क्योंकि भारत आज के दिन में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में वन ऑफ द वर्स्ट टॉप, मतलब लिस्ट में टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आता, among being the worst countries. One thing is called, this is what is called the most valid way of, if you give less dose in less person, you are creating a resistance. Yes. So that is why you should give high dose and right duration. That's adequate dose, adequate time, adequate indication, only if indicated. Correct. So Dr. Sachin, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में तो एचएल इंडिकेटेड है ही है ना, अगर हमने डायग्नोज कर लिया है तो हमें एंटीबायोटिक देना ही है। That's what I said, इंडिकेशन है जरूर दो। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, Yes. मुझे मालूम भी है और मुझे बताया भी गया है कि स्कूल हेल्थ में आप बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है स्पर्श, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि आज हम नाक की बात कर रहे हैं और नाक से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर विजन कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम स्कूल हेल्थ में अवेयरनेस के लिए और चेकिंग के लिए, रेगुलर चेक के लिए क्या करना चाहिए और क्या आप करते आए? ऑफ कोर्स दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हियरिंग स्टेटस आल्सो। Sir, as we have been conducting free health checkup camps in schools, mostly for underprivileged children, these schools are run by NGOs, and we physically examine the child and prescribe medicines if required accordingly. And along with this, we also take some awareness classes for the children, because most of the time parents are not available, they are out on their work. So we try to teach the children what is the basic concepts of how to keep yourself healthy. Like maintaining hygiene is a very important issue, because most of the children which are from this lower socioeconomic status, they are not very much aware of this hygienic issue. They are going for their lunch, anything without washing their hands, keeping minimal distance between two children, sharing their clothes and
pen and everything, putting all these things in their mouth and nasal cavity. So these are small steps we try to tell them, okay, because we tell them you become ill because there are some fine germs which enter into your body. So from where they can enter from your mouth, from your nose, and how they will enter your mouth through your hand. So first thing is maintain hygiene as much as possible. Wash your hands before and after taking meals, after going to toilet, whenever you touch your mouth. So these simple tips we have found when we revisit these schools after 6 months, after 1 year, then their school teachers, they tell us, yes, sir, we have observed the number of school absenteeism due to illness has reduced significantly. Second is the role of diet, because still most of the children, due to their preferences, they try to consume one type of food, either milk alone or something else. So we give them a concept of you should take each and everything available in the form of food. Like if you want to make a drawing, then you need different colors to give a good picture. If we give you only one color, like yellow color or red color, then you cannot paint a very good picture if you want to make a picture. So similarly, if you want to have a good health, good body, then you should consume all the things which are available. It may be possible that you like one type of food, so you can consume a little bit more. But ultimately, there should be concept of no. You should not say no to any of the food. Like there is rice, pulses, vegetables, fruits, cereals, curd, paneer, whatever is available in your home, you should go for. And the second thing we try to force is do not go for the fancy foods or which you import or which is of very high cost. Even foods which is easily available, locally grown, available at a cheap price is equally good, like मूंगफली, केला, अमरूद, संतरा. मैं तो ये कहना चाहूंगा इक्वली गुड नहीं, दे आर It's बेटर. better. even better, right, sir? It's even better. So we try to give after checking if they have some problems like they have snoring, uh, shape of dental alignment. They complained, okay, repeated fevers आ रहे हैं, diarrhea हो रहा है. So we try to link with their conditions and give them some tips. Okay, along with medicine, you also should take these preventive steps, and not only for you, but you should tell these things to your uh, siblings, your parents as well, so that overall hygiene and health status improves. So थैंक these Thank some steps are we try to involve in our, because we think even if we treat them for the current condition and if we don't teach them or make them aware, they again fall ill after some time. So as traditionally we say ki in India every child has 6 to 10 episodes of diarrhea and URI. So even in practice we see, even I think Dr. Arvind Garg will agree, we even see even the frequency is even higher. Almost every month they are having 1 or 2 episodes repeatedly. तो So all these अल्टीमेटली things we can हमें उनकी एक बॉडी इम्यूनिटी को भी बढ़ानी immunity we चाहिए should. और करके. डॉक्टर मोहता, डॉक्टर मोहता अनम्यूट कर लो. यस सर, यस सर. टाइम तो हम करीब करीब कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा. एक तो ये हमने नेजल कैविटी का साइनस की बात कर ली, यूस्ट्रिकन ट्यूब की बात कर ली, लेकिन रूफ तो हमारा ब्रेन से रिलेटेड है. तो यस सर, आपने बताया कि सीएसएफ, यस सर. तो इसके बारे में बताएंगे कि सीएसएफ क्यों आ जाता है नीचे कभी कभी नाक से, जिसे हम सीएसएफ राइनोरिया कहते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. सर अगेन सीएसएफ रेनोरिया, अगेन हेड इंजरी जब होता है तो बेसिस स्कल में फ्रैक्चर होते हैं विच आर कम्युनिकेटिंग. तो उस सिचुएशन में इनिशियली ब्लीडिंग होगा, लेकिन बाद में फिर क्योंकि कम्युनिकेशन हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टम से एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से सीएसएफ बिल्कुल क्लियर पानी की तरह आता है. और इसका पिक्यूलर सा यही इसकी खासियत है कि बिल्कुल क्लियर पानी की तरह नाक से बहता रहे. तो वी शुड थिंक अबाउट इट इन द फॉलो अप ऑफ अ केस ऑफ हेड इंजरी. उसके अंदर ये है कि उसका हेड ऊपर करके बच्चे को लिटाना है, थोड़ा हेड अप करके. एंड सेकेंडली
अवॉइड रेजिंग द प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसका मतलब ये खांसी मासी ना करे, बच्चा शांत से लेटे, तो दैट इज अनदर थिंग विच इज एडवोकेटेड. This is a main primary care, and obviously the patient has to consult a doctor, maybe a pediatric surgeon or a neurosurgeon for that matter, or a ENT surgeon who can advise on that. डॉक्टर मैं मोहता, Sir, कभी कभी जब ऐसा अनफॉर्चुनेट होता है तो पेरेंट्स जानना चाहते हैं, मैं बच्चों की भी नहीं बड़ों की भी बात कर रहा हूँ, कोई भी जानना चाहता है कि ये क्या नॉर्मल नेजल डिस्चार्ज है या ब्रेन वाटर है, yes, sir. नॉर्मल लैंग्वेज में। तो नॉर्मली अचल हम एडवाइस करते थे कि उसको रुमाल में ले लो और रुमाल में लेके उसको सूखने रख दो। यदि स्टार्ची बन जाएगा तो So शायद result ये discharge नेजल है. सिक्रीशंस हैं। Yes, sir. यदि नहीं बनता है तो ये ब्रेन यानी ब्रेन वाटर जिसे कि हम CSF Yes, कहते हैं sir. वो हो सकता है। ये विचार अब भी ठीक है डॉक्टर गुलाटी? सर बिल्कुल अभी भी ठीक है। अगर मैं देखूँ जो आप CSF राइनोडिया की बात कर रहे हो, मेन हमारे को इसमें डिफरेंशिएट करना है एलर्जिक राइनाइटिस से, कि एलर्जी तो नहीं है नाक में, क्योंकि उसमें भी क्लियर पानी आता है और CSF में भी क्लियर पानी आता है। लेकिन जो नाक से पानी अगर वहां से आ रहा है तो उसमें एक म्यूकस एलिमेंट होगा, तो जब हम उसको रुमाल पे लेते हैं तो एक वो वहां पे परत सी जम जाती है, जिसकी वजह से रुमाल सख्त हो जाता है। इसका बेस्ट टेस्ट, अगर सिंपल सा टेस्ट है उसका, हम ग्लूकोज एनालिसिस अगर हम करें तो जो CSF का, अगर हम जो ब्रेन वाटर जिसको आप कह रहे हो उसका अगर हम ब्लड शुगर है, वो हमारे नॉर्मल ब्लड शुगर से करीबन 2/3 नीचे होता है। सो वो एक हमारा टेस्ट हो जाता है, जो एक रूटीन टेस्ट अवेलेबल है, बिना किसी ज्यादा कॉस्ट के। वो टेस्ट आराम से उसको फ्लूइड कलेक्ट किया हमने और वो कर लिया। लेकिन एलर्जी, और इसमें एक और चीज है कि अगर हम बच्चे को बोले कि तुम उठ के बैठो और आगे झुक करके बैठोगे अगर, तो अगर नाक से पानी टिप 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 बहता रहता है कंटिन्यूअसली, तो वो इंडिकेशन है कि वो हमारे ब्रेन से आ रहा है, तो उसको वी हैव टू बी मोर केयरफुल। अब इस सिचुएशन में जब तक हम उसका डायग्नोसिस या जब तक हम उसकी ट्रीटमेंट को इनिशिएट नहीं करते हैं, बच्चे को हमारे को थोड़ी सी प्रिकॉशन देनी पड़ेगी कि बच्चा नाक ब्लो नहीं करेगा, सुनकेगा नहीं नाक, क्योंकि नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है हमारे में, अगर नाक में पानी आ रहा है कुछ भी आ रहा है तो ब्लो करो ठीक हो जाएगा, या सुनको ठीक हो जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है वो नहीं हो, क्योंकि उससे वो चीज बढ़ सकती है। सो आई थिंक ये चीज जो है बहुत जरूरी है इम्प्रेस करना, कि अगर नाक से पानी टपक रहा है, खाली क्लियर वाटर टपक रहा है बिल्कुल पानी की तरह, तो उसको जरूर दिखाना चाहिए, कहीं पे भी जाकर के दिखाओ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट जरूर होना चाहिए और रूल आउट करना चाहिए कि क्या कारण है उसका। Also circumstances भी देखने हैं कि हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी है तो इट्स मोर लाइकली टू बी CSF rhinorrhea हाँ rather than this thing, sir. बिल्कुल, लेकिन ये काफी बहुत हद तक ये स्पॉन्टेनियस भी हो जाता है। अगर उसमें जो Exactly. Okay. एरियाज कोई वीक एरियाज होते हैं तो स्पॉन्टेनियस एक Okay. छींक के बाद भी शुरू हो जाता है कई बारी, या एक जोर एडल्ट्स से स्निफ वगैरह में करने तो के बाद। छींक के बाद या थोड़ा सा झटका लग जाए, वन जी हैज टू बी वेरी Yes, केयरफुल। sir. एक डॉक्टर और भी तरीका है। नॉर्मली जो CSF राइनोडिया कैन नॉट बी स्टिफ्ड बैक। जैसे नेजल सिक्रेशन स्टिफ बैक कर सकते हैं, नेजल राइनोडिया विल नॉट कैन नॉट बी स्टिफ बैक। एंड इसका जो टेस्ट होता है, सपोज गोस Salty. इसका टेस्ट स्वीटिश सॉल्टिश होता है, जैसे हमारे ORS का होता है। ओके, दैट्स राइट। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से। अ, हमने नेजल एलर्जी की बात की थी, हमने चेस्ट एलर्जी की बात की थी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की, एंड विद दिस पोल्यूशन जो प्रॉब्लम पेरेंट्स में आ रही है, छोटे बच्चों में आ रही हैं, और डॉक्टर सचिन, डॉक्टर अरविंद, आपके पास तो एलर्जी ब्रोंकाइटिस लेके रोज मरीज ही लगे रहते होंगे, और ये तो पूरी इंडिया की प्रॉब्लम, इंडिया की पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है ये तो। वर्ल्ड की ये- प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम। तो इसमें आप किस तरीके से नेजल को चेस्ट से कोरिलेट करते हुए एक पर्टिकुलर एडवाइस देंगे पेरेंट्स के लिए? So normally I start with the, I'll take 2 more minutes to explain. हाँ हाँ, I normally start with the detailed history. The way I ask is, आपके घर में इस बच्चे के फादर, इसके फादर के बच्चे के चाचा ताऊ बुआ दादा दादी, बच्चे की मदर मामा मौसी नाना नानी, किसी को भी बहुत जल्दी जल्दी जुकाम या जल्दी जल्दी खांसी होती थी या अभी भी होती है, किसके स्किन रैश विद एलर्जी होता था या अभी भी होता है, तो इट गिव
because 70% time you have history of atopy in the family. तो मेरे को atopic history मिलती है. So then if there is atopy history, I always give a trial of anti-allergic only. And क्योंकि all these atopic allergies will be triggered with the irritant like pollution and viral infection. So it will start as a viral infection and it will go on and on for long duration. And that's how we treat. Right. And I very quickly shift on intranasal steroid inhalers. You feel that intranasal steroidal installation is The best. the best, and it perhaps become preventive Yes, for yes, an increase because in it the says if you episode. prevent nasal allergy, you prevent asthma. अरविंद, फिर ये भी बता दो कि यहाँ पर अपने जो योगिक एक्सरसाइज हैं और थोड़ा सा जल नीति वगैरह का क्या रोल है, उसको क्या फॉलो करने में दिक्कत तो नहीं है? तो जल नीति यदि आ जाए करनी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा एंटल वॉश होता रहता है। और योगिक एक्सरसाइज के अंदर जो प्राणायाम है, स्पेसिफिकली हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, बिकॉज आप इन दोनों से आप डेफिनेटली इसको कंट्रोल कर दें। स्टैटिस्टिकल है कि दोज आर डूइंग इट दे गेट lesser and lesser requirement of intranasal corticosteroid or inhalation steroid. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हमको, बड़ों को भी और जो बच्चे कर सकते हैं उनको ये एक्सरसाइज जरूर करें। डॉक्टर गुलाटी? जी सर, आई थिंक व्हाट डॉक्टर अरविंद सेड इज वेरी करेक्ट। लेकिन हमको बच्चों को जब हम उसको इनहेलर देते हैं तो माँ को जरूर एक्सप्लेन करना है कि इनहेलर कैसे यूज करना है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इनहेलर को सही तरीके से यूज नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है। और इनहेलर हमारे को दोनों जगह यूज करनी है। जैसे आपने बोला कि एलर्जिक राइनाइटिस ऑफ्टन फॉलोज लीड्स टू ब्रोंकियल अस्थमा, सो इट्स अ कॉमन सिचुएशन कि ट्रीट द वीज टुडे टू ट्रीट द स्नीज टुडे टू प्रिवेंट द वीज टुमारो। Very तो good. Very जो good. ये इशू जो है हमको ध्यान रखना है, तो हम नेजल स्प्रे कैसे यूज करना है और ब्रोंकियल स्प्रे कैसे यूज करना है, ये दोनों चीजें हमको सिखानी है। If you give me 1 minute time, how much time we have to explain to the parents? I have a device with me. I can show you right here. Give me a second. प्लीज। एंड इन द मीनवाइल जब हम स्प्रे नाक का यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करना है, क्योंकि उसकी जो नोजल होती है उससे हम नाक में इंजरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से अल्सर बनता है, फिर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमको बहुत ध्यान से पेरेंट को समझानी है। और छोटे बच्चे को इनहेलर देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसके लिए हमारे पास स्पेसर होते हैं। This is the device I have. I tell the mother, if the direction is like this, या it is incorrect. And if it goes like this, it is correct. So then I open them and explain them how it looks like, how does it done. So every time it will take at least 10 minutes to explain them and make them know. And I call them with every visit, you have to bring the device and show me how we're doing. Very good. I think it's a very important counseling part of the parents, wherever indicated. Very good. So, सर एलर्जी की तो कोई लिमिट है ही नहीं। अगर हम सैमसन राइट फिजियोलॉजी की बात करें, वन कैन बी एलर्जिक टू एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन इटसेल्फ। इतने सारे एलर्जन हैं हमारे पास। तो ये सारी चीजें, आई थिंक तुमने सन की बात की, मैं कह रहा था यू मे बी एलर्जिक टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर वाइफ और हस्बैंड, विच एवर इज एप्लीकेबल। दैट इज एट योर ओन पेरिल एंड रिस्क। सर आप बोलना चाहते हो जरूर बोल लो सर, मैं नहीं उसमें कुछ बोलना चाहता हूँ। सो अब मैं चल ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे। So I think I will take only one small message from all of you. I will start from Dr. Anup Mehta. Yes, sir. What do you think as a preventive advice to parents under these circumstances from your side? So regarding epistaxis, sir? Okay, you talk about epistaxis. Sir, epistaxis Short again, message. as you have discussed, हमने सारे कारणों को हमने देखा है कि क्या क्या कारण होते हैं एपिस्टेक्सिस के। या तो नाक में उंगली डालना, या फॉरेन बॉडी लाइक पेंसिल वगैरह डालना ट्रॉमा की वजह से, या फॉरेन बॉडी की वजह से। तो मेरा मैसेज यही है कि
ऐसी चीज़ों को बच्चों की, छोटे बच्चों की रीच से दूर रखा जाए। और अगर कुछ देते भी हैं, अब सर डॉक्टर सचिन बोल रहे थे पीनट्स खिलाने के लिए, बट पीनट का नुकसान ये है कि दैट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट फॉरेन बॉडी इन द एयरवे, which upper as well as lower airway. So we have to counsel the parents कि अंडर सुपरविजन खिलाएं या देख के खिलाएं कि ठीक से खाएं. So we have to avoid. Prevention is better than cure. That is the message I would like to give, sir. तो वो जो एक कहावत है, नाक में उंगली मत कर मत कर मत कर, बिल्कुल सही है सर। वो ये आप कन्वे करना चाह रहे हैं। Yes, sir. डॉक्टर गुलाटी। सर सर एक तो बच्चों को अनफॉर्चुनेटली आजकल टाइम ही ऐसा आ गया, एनवायरनमेंट ऐसी है कि बच्चों को बाहर खेलने भी दिया जाए तो क्या खेलने दिया जाए, बट क्योंकि वो एक्सपोजर नहीं होता तो उनकी सेंसिटाइजेशन नहीं होती, विच इज वाई सो मेनी प्रॉब्लम्स हैपन। सो जब भी पॉसिबल हो, वेदर अच्छा हो, लेट द चाइल्ड गो आउट एंड प्ले। आपने देखा होगा सर, हमारे बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं, लेकिन जो गली के पीछे धोबी के बच्चे वो बाहर खेलते रहते सारा टाइम, उनको ज्यादा बीमारियां नहीं होती। सो समवेयर डाउन द लाइन द इम्यूनिटी डज प्ले अ रोल एंड दैट नीड्स टू बी एनकरेज्ड। सेकेंड थिंग जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोली, ट्रीट दी स्नीज इन टाइम टू प्रिवेंट द वीज इन टाइम, दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। हाँ, and these things, and do visit the pediatrician or the ENT surgeon for a proper advice rather than going on to the Professor Google or Chat GPT today, which is becoming a very big problem for all of us. We need to just look at that. And नाक में उंगली मत कर, जो आपने बोला सर, बहुत जरूरी चीज है, जो कि डेंजरस एरिया ऑफ द नोज, उससे फेटल बीमारी हो सकती है। यू कैन एंड अप इन अ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, यू कैन एंड अप इन सो मेनी थिंग्स, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। और नाक का हमारा सिर्फ संबंध नाक से नहीं है, हमारे कान से, आंख से, दिमाग से, सांस से, सबसे है। तो इसको जरा ध्यान से रखो सर। नाक बहुत सुंदर चीज है सर, नाक के ऊपर ही सारी रामायण हो गई सर। तो वी नीड टू जस्ट लुक एट दैट फ्रॉम। डॉक्टर पासी सर। सर वैसे तो काफी बातें हो गई मैसेज के लिए। आई एग्री विद एचएल कि हमें जो ये स्मॉगी वेदर है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, चाहे वो दिल्ली हो या दूसरे शहर हो। हम दिल्ली की बात इसलिए करते हैं कि दिल्ली में रहते हैं। वैसे मैंने देखा है कि बाहर जाके भी जो एनसीआर है या और दूर दूर के छोटे शहरों में भी इन दिनों में पॉल्यूशन की कोई कमी नहीं होती है, सब जगह लगभग एक जैसे ही हाल है। तो वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस कंडीशन। आई एग्री विद अचल व्हेन ही सेज कि हमारे बच्चों को भी बाहर खेलने दिया जाए इस माहौल में। उनको इंडोर मत रखो बिल्कुल, उनको भी एक्सपोज करो, थोड़ा सा उनकी कंडीशनिंग होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के, हम ये कहते हैं कि हमारे लंग्स जो है ना अब यूज्ड टू हो गए हैं स्मॉगी वेदर के। we do not suffer too much. Of course, डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर सचिन के पास बच्चों की प्रॉब्लम की तादाद बढ़ जाती होगी इन दिनों में स्मॉगी वेदर की वजह से, लेकिन इसको हमें इस माहौल में रह करके अच्छे से जीना है। वो एक सिस्टम बनाना होगा और उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपोजर जरूरी है। हालांकि जब बहुत सीवियर कंडीशंस होती हैं तो स्कूल भी बंद कर देते हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, पेरेंट्स की वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम लोग बिल्कुल उनको इंडोर ना रखें टोटली, उनको थोड़ा सा जरूर एक्सपोजर दें। अल्टीमेटली डॉक्टर पासी, आपका कहना का मतलब ये है जो अचल ने भी बताया, इम्यूनिटी ऊपर होनी चाहिए, और इम्यूनिटी के लिए बचावट भी है बट एक्सपोजर भी है, दोनों यस चीजें सर, यस सर। important है। अरविंद, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। सर मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स को, जो ब्लीडिंग रुक गई है उसको छेड़ो मत, उससे हमें कुछ करना नहीं है। जो ब्लीडिंग एक्टिव है, नहीं रुके, उसमें हमें कुछ करना है, नंबर 1। नंबर 2, आई विल टेल पेरेंट्स, सर हम सर थोड़ा लकी हैं कि हमारे साथ पेरेंट्स भी आते हैं। हम एक मरीज हैं, हम साथ पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स सब, बच्चे भाई सबको, दादा दादी सबको एजुकेट कर सकते हैं। और as we know, we have two crises coming in the country in next few years: allergies and obesity. जो हमारी जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, वो बच्चों से देखा हम एक ही बार में पेरेंट्स बच्चों सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं। वी टेल मदर्स, पेरेंट्स, please increase the green time rather than the screen time. Then we tell them green time means you have to go to physical activity, you have to read rather than from the books rather than from your
screen. These are few things, and because of we must understand there is a AQI very high. It's very polluted. Even whatever said and done, the lifespan those who live in such a way is less. So we have to accept as a matter of fact it is dangerous, but if have to go out, if they have to go out before sunset or before sunrise, definitely put a mask N95. Or all children must go to playground in the afternoon, and that is when AQI is the least. And if you have a ground where a lot of plants, that's the best ground, it will have least AQI. So they should go and play there. This is what message is. थैंक यू। डॉक्टर सचिन, स्कूल हेल्थ के बारे में आपकी विजन क्या है? 30 सेकंड में बता दीजिए। Sir, I think as a doctor, whatever specialty we belong to, we must spare some time for the children and try to tell them the important points, basically of the preventive aspect, so that whenever the children they grow up, they are in a better position. And one thing I would also like to add, sir, जल नीति हमारी आयुर्वेद और शायद पूर्वजों की एक बहुत अच्छी धरोहर है जिसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा जब बच्चा बड़ा होता है और जब हम सिखा सकते हैं तो मुझे लगता है कि एज ए प्रिवेंटिव ये बहुत ही कारगर है, और जरूरी नहीं है कि जब हम बीमार हों हम तभी उसका उपयोग करें। अगर हम उसे रूटीन में ही अपनाएं जैसा आयुर्वेद कहता है और हर रोज हर आदमी उसे करे तो एक बार में 5 मिनट से का भी समय हमें नहीं लगता सीखने के बाद। और सीखना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी जो योग प्रशिक्षक है वो सिखा सकता है, कॉस्ट भी ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो ये हम सबको अपनाना चाहिए। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सर, मैं 52 ईयर्स का हो गया हूँ और मेरे को बहुत सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस है। जब मैं 7th 8th में था बहुत बुरी हालत हो जाती थी और अभी भी हो जाती है। उसके बाद 19 ईयर्स पे सेप्टोप्लास्टी हो गई, बट एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से कुछ नहीं हुआ। फिर मेडिकल कॉलेज में जितने भी एंटी प्रोफेसर्स उन सब से डेलर्जेंस लग गए, एवरीथिंग ट्राइड स्टीरॉइड, बट मेरे को बहुत ज्यादा सिम्टम्स में रिलीफ आ जाता है जल नीति की वजह से। गर्मियों में भी और सर्दियों में भी आई ट्राई कि जब बहुत ज्यादा राइनोरिया ना हो तो मैं इसे कंटिन्यू रखूं। और अपने एक्सपीरियंस से और कुछ बच्चों पे भी जो थोड़े बड़े कर सकते हैं मैंने देखा है, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी विधि है। और अगर हम लोग उसको मॉडर्न साइंस वाले भी अगर उसको गाइड करें तो शायद अच्छे से हम अपनी जनता के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। आई थिंक आप लोगों सब भी, क्योंकि ईएनटी से हैं, आप लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस या किसी को कुछ इनिबिशन रहा हो तो प्लीज आई वुड लाइक कि आप लोग शेयर करें। अदरवाइज ये एक ऐसी चीज है जिसे हम आई भुला थिंक रहे हैं। सचिन, जो तुम्हारा कहना है, जो कंसेप्ट है ओल्ड इज गोल्ड, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज रिगार्ड दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर इज कंसर्न। और ये तो हमारी भारत की जो सालों साल हजारों साल पुरानी धरोहर। पद्धति है जिसको कि हम लोग फॉलो करते रहे हैं। बीच में जरूर थोड़ा गैप था, अब दोबारा से हम डॉक्टरों ने भी, लेकिन अब थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म है, जो कॉस्ट फैक्टर थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारा पुराना सिस्टम ठीक से किया जाए जिसमें कॉस्ट नेग्लिजिबल है। दैट इज एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। थैंक यू वेरी मच। आई नाउ तिवारी साहब। एक सेकंड Yes, सर, sir. जी जी जी। सबको ये बोलना चाहूंगा सर, सबको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एडवाइस करना चाहिए फ्रॉम द मंथ ऑफ मई ऑनवर्ड्स। इट इज नेवर लेट। ठीक है Yes, जी। sir. आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर सीनियर पीडियाट्रिशियन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, प्लीज गो फॉर इट। सो तिवारी जी, Yes, ऑल sir. द एक्सपर्ट्स आर बैक टू यू। मुझे आपने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, Yeah, वो yeah, होंगे, yeah. तो प्लीज यू कैन पुट अप द क्वेश्चन टू द Yeah, एक्सपर्ट। thank you, sir. This is my first question. I will go one by one. First question goes to Dr. Achal Gulati Saab. Sir, this question raised by Rohit Verma from Noida Sector 37. He is asking, my child gets frequent nasal bleed during summer. Is this due to weather or could it indicate on underlying medical problem? What would you say? देखिए रोहित, समर्स के अंदर ब्लीडिंग कॉमन हो जाती है क्योंकि हवा में जो मॉइस्चर की मात्रा है बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं अंदर तो ड्राइनेस हो जाती है। जब ड्राई होता है नाक और थोड़ी सी भी नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो
तो अंदर क्रस्टिंग जमना शुरू हो जाती है। जब वो क्रस्ट गिरता है तो ब्लीडिंग होती है। अब नॉर्मली एक ये कारण होता है, दूसरा कारण ये होता है क्रस्ट जम गया, हमने नाक में उंगली डाली और क्रस्ट निकल गया तो ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सबसे ज्यादा कारण यही है कि एक थोड़ी सी नाक की अगर हड्डी टेढ़ी हो और गर्मियों के अंदर ड्राइनेस होती है, और दूसरा अगर हम नाक में उंगली डालें, ये चीज है। लेकिन फिर भी अगर एडल्ट है, बार बार होता है, हो रहा है, तो कभी अपने मौका लगे तो कभी किसी ईएनटी सर्जन को जरूर दिखा लें, ताकि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो हम मिस ना कर दें। बस खाली ये बात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने खाली ऑनलाइन कंसल्टेशन ली और हम उसी चक्कर में एक कोई मेजर प्रॉब्लम हम नीचे की मिस कर देते हैं। तो वन मस्ट ऑलवेज टेक अ ओपिनियन इफ इट इज रिक्वायर्ड। Thank you, sir. Next question go to Dr. Basi Saab, I think ENT specialist. Sir, could you tell us this question read by Amit Khanna, Panipat, Haryana? Sir, he's asking at what point should parents worry about repeated nosebleed and consult an ENT specialist like you? डॉक्टर अचल गुलाटी हैज ऑलरेडी नरेटेड कि हमें एपिसेक्स के केसेस में क्या करना है। हमें जैसे गर्मियों के सीजन में जो फ्रीक्वेंट ब्लीडर्स हैं, जो बच्चों में होता है, वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये ब्लीडिंग अपने आप कम और बंद हो जाती है। लेकिन जब हो रही होती है तो उसका इलाज वही है कि हमने जैसे बताया कि आप उसका नोज पिंच करके रखिए ब्लीडिंग टाइम तक 5 मिनट्स ऑन एवरेज। ठंडा पानी ऊपर नाक के ऊपर डालिए, पोजीशन कीजिए उसको आगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। और अगर उसके बावजूद भी अगर ब्लीडिंग चलती ही रहती है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखा देना चाहिए। इसके अलावा जो एडोलेसेंट ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके अंदर कुछ लोकल कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो जो बहुत मैसिव ब्लीडिंग का कारण बनती हैं, और वो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, कैंसर तो नहीं होता है वो, लेकिन वो ब्लीडिंग इतनी भयंकर होती है कि उससे बहुत डरावनी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो उन केसेस में भी ईएनटी कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। कुल मिला के कहना यही है कि जो फ्रीक्वेंट ब्लीडर्स हैं वो, उनको अगर बहुत माइल्ड ब्लीडिंग है, बच्चा है, तो उसको फर्स्ट एड में ही ट्रीट किया जा सकता है। अदरवाइज ईएनटी स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन जो है वो जरूरी है, और वो उसको डिपेंडिंग अपॉन द कॉज उसको ट्रीट करेंगे। और तिवारी, एक छोटी सी बात और, मैंने गर्मियों की बात की। गर्मियों में हमारे घरों में एयर कंडीशनर्स चलते हैं ना, एयर कंडीशनर्स जो हैं वो हमारे मॉइस्चर को कमरे से निकालते हैं, तो ड्राई हो जाता है कमरा, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो रूम्स में जब एयर कंडीशनर चल रहा हो तो ह्यूमिडिफायर्स भी होने चाहिए बीच में थोड़े से। Thank you, sir. Next question go to Dr. Arvind Garg Saab. Sir, this question from Pankaj Mehta from Ghaziabad. Sir, could you tell us, is nose picking really a major cause of nosebleeds, or is it just a common myth? Nose picking is a very common cause. And इसी में I would like to add, बच्चों के नाखून बहुत जल्दी बढ़ते हैं. The mother have to cut almost every 7-10 days. And वो जहाँ रह जाते हैं वो, and they really hurt. क्लिनिक में कभी बच्चा हाथ पकड़ता है तो ऐसा लगता है कि किसने सुई चुभा दी हो. So it's, and they have to be very careful about it. But nose finger picking is a very common habit, and it is one of the common cause of frequent nosebleed. Thank you, sir. एक चीज सर, एक चीज मैं कह रहा था कि जो हमारे एयर कंडीशनर्स होते हैं, by default they have humidifier also, but they always keep the room temperature and humidity up to 50%. That's what is required for us. So I think ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ एयर कंडीशनर पर डिपेंड करता है। इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि जब भी हम बाई करें, ऑल दिस फीचर्स शुड बी लुक्ड इनटू। वही सर, 1.5 टन का एसी 65,000 का है जिसमें ह्यूमिडिफायर्स वगैरह लगे हुए हैं। जो वही 1.5 टन का एसी आपका 19,000 20,000 का एडवर्टाइज करते हैं, दे आर नथिंग बट कूलर्स एक्चुअली। दे कूल डाउन द एटमॉस्फेयर इनसाइड। You are correct, Arvind. Thank you, sir. This next question go to Dr. Anum Mohta Saab. Sir, could you tell us, this question read by Neha Joshi from Jaipur. Can allergy and sinus infection increase the risk of nasal bleeding in children? What you would like to say? So definitely the allergy rhinitis वगैरह की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि secondary infections वगैरह होते हैं. I think our ENT colleagues will be better equipped to answer this question, sir.
So I'll transfer this question to them, sir. एक चीज मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा कि जो इंटरनेजल स्टेरॉइड डालते हैं, वी आर सपोज टू पुट आइदर वे, the many times it goes to the medial wall and it causes, that's one of the common cause of nasal bleed in both those who are using nasal spray. वेरी वेरी राइट, डॉक्टर अरविंद ने बहुत अच्छा पॉइंट किया है कि हमें प्रॉपर डायरेक्शन जो है स्प्रे की वो जरूरी है हमारी जानना कि हम लेटरल साइड पर ही उसको प्रेस करें। बिल्कुल Next ठीक है। question goes to Dr. Sachin Bhargav. Sachin Bhargav. Sachin Bhargav, Yes, sir, please yes. could you tell us, this question goes from raised by Ritu Malhotra from Patna. Dr. Bhargav, could you tell us, are there any nutritional deficiencies like low iron, vitamin deficiencies that can cause frequent nasal bleed in children? What would you say? Nasal bleeding. Yeah. Should I repeat? No. I would say nothing specifically. If the overall status is malnourished, then he might have a higher risk, but we cannot pinpoint any specific nutrient. So to maintain a good health, all the micronutrients as well as macronutrients, they should be properly in a balanced diet should be advised. And consuming a specific nutrient in the name of that it will prevent epistaxis, I don't think there is some scientifically proven nutrient which we can say this will prevent epistaxis. Sir, this next question go to Dr. Arun Agarwal, sir. As you are जी, expert, जी। sir. Everything is not possible. That cannot be you answer. Sir, you tell me just one question, please. How safe is nasal spray? As you already discussed about so many minutes, speakers discuss on the nasal spray. What is your personal view? How safe is nasal spray usage in children, and can overuse woman nasal problems? नेजल स्प्रे के बारे में ना Yes. तिवारी जी, नेजल स्प्रे। यस सर, यस सर। Yes. I'm just देखिए, repeating how हाँ नहीं, how देखिए Sunday. नेजल स्प्रे में दो वैरायटी हैं। एक तो वो जो नाक खोलने के काम आते हैं, इमिडिएटली नाक खोलने के, जैसे उसमें ऑक्सीमेटाजोलिन मेन कंपाउंड होता है। वो तो हम रेकमेंड करते हैं और मेरे पीडियाट्रिक कुलीग और कुलीग एग्री करेंगे। एसओएस जब जरूरत होती कीजिए, ज़्यादा नहीं यूज करने चाहिए उसको हमें, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी फिर आदत भी पड़ जाती है और उससे कुछ आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बताया, डॉक्टर अचल गुलाटी ने, डॉक्टर अरविंद ने, सब ने बताया कि एलर्जिक फैक्टर के लिए जो हम लोग नेजल स्प्रे लेते हैं उसका यूज़ तो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एलर्जी को जैसे डॉक्टर गुलाटी ने कहा, स्नीज को रोको वरना तो वीज आएगी। तो उसके लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और ये सेफ है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी सेफ है। लेकिन हाँ, ये मतलब नहीं है मेरा कि रोज सुबह उठ के पानी के साथ साथ कर लो। जब डॉक्टर इंडिकेट करे और ड्यूरेशन डॉक्टर बताए तब तक ये सेफ है। मैं एक चीज पे सबको आई ट्राई इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू, आई हैव बीन यूजिंग inhalation steroid since the time it has come to India. So it's almost 30 years, every day, morning, evening. I have started recently using intranasal steroid for last 2 years, every day, without fail, in the evening. So I can only tell you this, when I tell them, I must use it on myself also. So I am very confident, they are very safe, they have no side effects. Sir, question is that can overuse women nasal have the nasal problems? समझ नहीं आया। Overuse. Over Hello. Sir, overuse of sprays, can it have problems? overuse of spray. Yeah. वोमन, खास करके जो औरतें कभी स्प्रे लेती हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है, नेजल स्प्रे जो लेती हैं। सर देखो, एज ए लेडी होनी नहीं चाहिए, देयर इज नो रीजन। इफ
कोई Sir, अच्छी बात नहीं है. if The she's putting in the nostril, there's no problem. If she's putting the like this, then it's dose difficult. the dose of spray is in the sense in micrograms. तो जब हम स्टीरॉयड स्प्रेज भी लेते हैं तो लेडीज में चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, उसमें कोई हमारे पास प्रूव्ड एविडेंस नहीं है कि उसकी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. बट all said and done, one should always be careful while prescribing any medicine to a pregnant lady. One should always be cautious and tell them that this is what I am prescribing. Otherwise, there is no thing. और जो डॉक्टर अग्रवाल को आपने सवाल पूछा था, साइड इफेक्ट्स ऑफ द नेजल स्प्रे, तीसरा ऐड मैं करूंगा. एक तो मेडिसिन का हो गया, दूसरा जो तीसरा ऐड करूंगा वो इंजरी ड्यू टू द स्प्रे नोजल. वो हमारे को केयरफुल रखना है कि उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है, तो वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट होता है स्प्रे का. Thank you, sir. Now I just hand over to Dr. Agarwal to kindly conclude today's webinar. Thank you, sir. So we had a wonderful discussion for last 85 minutes precisely. And perhaps the topic in relation to nasal condition, especially in pediatric age group, of course, literature is very vast, subject is very vast. There are so many other conditions, but one day we cannot cover all. But whatever we discuss is perhaps containing the message to all the parents what to do, what not to do. So I'm thankful to Dr. Achal Gulati. Thank you for sparing your Sunday morning. So is my friend Dr. J.C. Pasi. In spite of that, he is not very comfortable. You can see he is lying down, but he could join. We are very, very thankful to you, Dr. Pasi, Dr. Arvind Garg. Thank you very much for giving your input and special input. I realize that your Pediatric Association are doing wonderful job. अचल गुलाटी जी, पीडियाट्रिक एसोसिएशन को कांटेक्ट किया जाए और वो जॉइंट वेंचर किया जाए. ये जो टिप्स है ना, छोटे छोटे टिप्स ये सर, बता रहे थे. यूनाइटेड एयरवेज में यही तो सारे ट्रेवल करते हैं सर. पीडियाट्रिशियंस, स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियंस, ईएनटी फिजिशियंस, जनरल फिजिशियंस, सारे यूनाइटेड एयरवेज में यही तो ट्रेवल करते हैं. हम यूनाइटेड एयरवेज को एक्सपेंड और करना और चाहेंगे. अमरेश जी उस यूनाइटेड एयरवेज को अच्छी तरीके से उड़ाते हैं, सबको साथ साथ लेकर. Dr. Anup, Thank you, thank sir. you very much for joining us and giving your input. And Sachin, thanks to you also. And I'm sure we all are associated with the school health some or other way, but your efforts of dedicating yourself, your NGO for the school health, well, this is the need of our इंडिया में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और वहीं पर हम यदि ठीक से अच्छा नेटवर्क करके, गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन परहैप्स समथिंग मोर शुड बी एडेड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर भी यदि इसमें जुड़ जाए तो हम अपने बच्चों का ही सेहत ध्यान रख लें तो आगे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच तिवारी जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप, एंड बाद में मिलते रहेंगे.